Good morning, everyone, and welcome to this live online class conducted by Directorate of Education, Delhi. First of all, on behalf of my whole chemistry team, I would like to thank all of you for your wishes on Teachers' Day, which you posted in live chat and later in comment section of lecture also. God bless you all and stay happy. Today's session is lecture number 5 of P block elements, and we will continue with group 15, and today we will complete group 15. Previous 4 lectures of the chapter can be searched on YouTube channel by subject and date, and link to the quiz and PDF of the lecture is also there in the description box of that particular lecture. So go through the lecture, attempt the quiz, because it is still, all the quizzes are still accepting the responses, and you can get the PDF of the lecture in the description box itself for that particular lecture. So as always, I will start with the introduction of the panel of teachers with me in this live class today. Today's session will be conducted by me, that is Dr. Seema Bhardwaj from RPVV Sector 10 Dwarka. With me, my co-panelist for the class is Mr. Mukesh Kaushik from RPVV Narela. Our coordinator, Mr. Harpreet Singh from RPVV Kishanganj. Taking up your queries on YouTube, we have Mr. Pradeep Kumar Gosai from RPVV Gandhinagar and Mr. Rajiv Kumar Jha from School of Excellence, Madanpur, Khadar. So this fills me with great joy when I share all these stats of those quiz of the last class with you. The number of respondents in these quizzes is increasing every week, and you all deserve a big round of applause for your enthusiastic participation in all these quizzes. So stats of quiz 4 are there in front of you on the screen. And total number of responses that we recorded for that quiz is 4850, 4,850. More than that, responses we recorded for quiz 4. Number of respondents जिनका स्कोर 10 on 10 आया, परफेक्ट स्कोर किया उन्होंने, देवर 1300 प्लस. इससे लास्ट क्विज जो था टेस्ट 4 टेस्ट 3, उसमें जो responses थे जिनका 10 on 10 था, that was 1000 plus. So there is a remarkable increase, and that actually deserves a big round of applause. Average score has also improved. In test 4, we have average score of 7.36 on 10, while in the previous quiz, that was test 3, it was close to 7. So that is also improved. So that is appreciable. Again, one more thing. So like every time, one question I have selected, which was problematic for maybe a large number of respondents. And that question was, boiling points of the following hydrides follow in the order. And these options were given to you, and the correct answer for this was option number A. And the reason to this, that phosphine has a lower boiling point than ammonia, and it has lower boiling point than arsine and stibine also. This reason was discussed in the last class when we discussed the properties of hydrides of group 15. So in case you are not, because ammonia has higher boiling point due to hydrogen bonding, these two have higher boiling point than phosphine. Arsine and stibine have higher boiling point than phosphine due to the greater surface area and stronger van der Waals forces of attraction, stronger attractive forces. So this, in case you are not clear with any of the reason of these two, which I told you, hydrogen bonding and van der Waals forces, you can go through the lecture again, which was streamed live on 1st of September. So go through that lecture. This reason will be clear to you. So once again, I will share the name of those 10 respondents who fastest scored 10 on 10 and submitting the response, they were fastest. These are Manu Dev Shah from RPVV Sector 10 Dwarka, Sunny Bhagat from RPVV Sector 5 Dwarka, Sonam Soni, RPVV Civil Lines, Deepti RPVV Kishanganj, Shivam Tripathi RPVV Sector 5 Dwarka, Anshika Bhargav SKV C1 Yamuna Vihar, Khushi Shukla SKV Samalkha, Divyansh Tiwari RPVV Sector 10 Dwarka, Shikha VSSKV number 1 School Kalkaji. I would also share one name here, that is Divyansh Tiwari. This is consecutively 4th time that this boy is making entry in this list of top 10. So very good, Divyansh, keep it up, and rest all congratulations to everybody, those who have participated in these quiz.
So keep it up in the future, and we again are expecting even more responses in the quiz this time. So let's quickly move to the class, and we will start the class as usual with a recap of lecture number 4 that was streamed live on 1st of September. So in lecture number 4, the topics we discussed were hydrides, oxides and halides of group 15. हमने डिस्कस किए थे हाइड्राइड्स, जिसमें हमने उनका स्ट्रक्चर डिस्कस किया ग्रुप 15 हाइड्राइड्स का, बॉन्ड एंगल, उसमें किस तरीके से वेरिएशन आता है जब हम मूव करते हैं फ्रॉम अमोनिया टू फॉस्फीन, आर्सीन, स्टिबीन एंड बिस्मेथीन। बेसिक कैरेक्टर का रीजन क्या है, किस तरीके से वो चेंज होता है व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉलिबिलिटी किस तरीके से अफेक्टेड है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का इम्पैक्ट ऑन बॉइलिंग पॉइंट एंड सॉलिबिलिटी, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी और हाइड्राइड्स का रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ये हमने डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स को, कि वो टाइऑक्साइड्स बनाते हैं और पेंटाऑक्साइड बनाते हैं विद +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। उनके एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स को हमने डिस्कस किया, एंड वो एसिडिक कैरेक्टर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट से किस तरीके से इंपैक्टेड है, दैट आल्सो वी डिस्कस्ड। Then we discussed halides of group 15 elements, कि ट्राइहेलाइड्स बनाते हैं एंड पेंटाहेलाइड्स बनाते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है। ट्राइहेलाइड्स पिरामिडल स्ट्रक्चर दिखाते हैं, पेंटाहेलाइड्स ट्राइगोनल बायपिरामिडल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइहेलाइड्स क्या है, पेंटाहेलाइड्स थर्मली लेस स्टेबल क्यों है ट्राइहेलाइड से, ये हमने डिस्कस किया फॉर ग्रुप 15. So this was about the last lecture. So any of these like hydrides, oxides or halides, अगर आपको क्लियर कोई भी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन है, you can go through that lecture again. So उस लेक्चर को दोबारा देखें, that will be clear to you. So now today we are going to discuss three major topics. We have preparation and properties of nitrogen, then preparation and properties of ammonia, and then preparation and properties of nitric acid. So these are the topics for the day, and with these three topics we will be ending this group 15 for P block. So let's start with the dinitrogen. If we say dinitrogen, so nitrogen exists as a diatomic molecule, molecular nitrogen. This is dinitrogen is molecular nitrogen, diatomic molecule it exists as, and molecular nitrogen is called dinitrogen, N2. So first of all, we will discuss the preparation. If we say commercial preparation of dinitrogen, so that is done. First, air is liquefied. We know that air has two major components, nitrogen and oxygen. So air is liquefied, and उसका जब हम fractional distillation करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमने 11th में भी पढ़ा था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब आप करोगे तो वो कंपोनेंट पहले डिस्टिल आउट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। सो लिक्विड नाइट्रोजन के अगर हम बात करते हैं, लिक्विफेक्शन कर रहे हैं एयर का और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो बॉइलिंग पॉइंट है नाइट्रोजन का दैट इज 77.2 केल्विन, एंड ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज 90 केल्विन। सो क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इट विल डिस्टिल आउट फर्स्ट एंड लीविंग बिहाइंड लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन रह जाएगा, हमें पहले जो कंपोनेंट मिलेगा वो मिलेगा डाइनाइट्रोजन। बिकॉज ऑफ इट्स लोअर boiling point, it will distill out first. Then if we discuss the lab method of preparation of dinitrogen, so उसको बनाया जाता है हीट करके एक equimolar solution of sodium chloride, so ammonium chloride and sodium nitrite. Ammonium chloride और sodium nitrite का equimolar solution अगर हम हीट करेंगे then we will get this. इस रिएक्शन में, इन दोनों की रिएक्शन में जो पहले बनता है दैट इज NH4NO2, ammonium nitrite बनेगा। ammonium nitrite itself can be heated to get this also, and is this in this reaction also we will first get ammonium nitrite, और ammonium nitrite एक unstable कंपाउंड है जो अगर हम देखें ये आगे डिकम्पोज होगा और ये दोनों कंपाउंड दोनों नाइट्रोजन मिलेगा आपको और वाटर मिलेगा। इसको अगर अमोनियम नाइट्राइट को हम हीट करते हैं, सेपरेटली भी इक्वेशन पूछी जा सकती है कि व्हाट हैपेंस व्हेन अमोनियम नाइट्राइट इज हीटेड। सो इस केस में यहाँ पे भी पहले बनता अमोनियम नाइट्राइट है, लेकिन वो क्योंकि अनस्टेबल है और रिएक्शन आप हीटिंग के साथ कर रहे हो तो वो डिकम्पोज हो जाएगा और फाइनली हमें प्रोडक्ट में दिख रहा है नाइट्रोजन
water and NaCl. So this is a lab method of preparation of dinitrogen gas. Then one more method is by thermal heating के through by thermal decomposition of ammonium dichromate. Ammonium dichromate is this compound NH4 twice Cr2O7. So जब हम इसको हीट करते हैं यहाँ पे भी हमें नाइट्रोजन गैस मिलेगी, वाटर एंड क्रोमियम ऑक्साइड. अब इस तरीके की इक्वेशन में व्हाट हैपेंस व्हेन में ये क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, चाहे आपको लास्ट वाला जो हमने अभी डिस्कस किया NH4NO2 या हम इसको अमोनियम डाइक्रोमेट को डिस्कस कर रहे हो, इन रिएक्शंस को लिखने के लिए आपके पास अगर सीधा वे है कि सबसे पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जो यहां से निकल सकता है उसको निकाल दो. जैसे यहाँ दिखा है आपको 4H है, तो 4H से अगर हम देखें 2H2O बन सकता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू रिमूव दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. तो हमने निकाल दिया 2H2O. हमारे पास क्या बचा? नाइट्रोजन. सो राइट N2. So this is what you will get when you heat ammonium nitrite. Then अगर ammonium dichromate के लिए भी वही काम कर रहे हैं तो remove first of all remove maximum number of water molecules from this molecule. So 4H2O can be removed. There are 8 hydrogens in this, so 4H2O we can remove from this. So write 4H2O. आपने लिखा 4H2O, जितना मैक्सिमम वाटर इसमें से निकल सकता था वो हमने निकाल दिया. 4H2O, then you write N2. एंड जब 4 ऑक्सीजन में से 7 में से आपने निकाल दिए 4, you have 3 now, so it will be Cr2O3. So that is how you can learn how to write these equation. So first of all remove maximum number of water molecules and then write rest of the products. So this is thermal decomposition of ammonium dichromate. One more method is there by thermal decomposition of barium and barium or sodium azide. Azides की अगर बोले तो this method is used if you want to prepare extra pure nitrogen gas. Suppose you are asked write one equation to get extra pure nitrogen gas. अगर आपसे ये पूछा जाता है कि extra pure nitrogen gas बनाने का method लिखो तो आप लिख सकते हैं through heat by heating this बेरियम और सोडियम एजाइड. एजाइड क्या होता है अगर हम बात करें तो ये एजाइड आयन है. N3 नेगेटिव आयन इज नोन एज एजाइड आयन. ये अगर आपको याद हो तो जब हमने एलोट्रोपी डिस्कस की थी वहां डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजन है वो 3 नाइट्रोजन एटम्स की चेन बना सकता है. सो दिस इज एजाइड आयन. सो ये इनमें देख रहे हैं Na पॉजिटिव N3 नेगेटिव, तो सोडियम एजाइड को हीट कर रहे हैं नाइट्रोजन मिलेगा, बेरियम एजाइड को हीट कर रहे हैं तो nitrogen. So this method is used for preparing extra pure, very pure nitrogen gas, and that is why this equation or this reaction is considered as important. क्योंकि कई बार अलग से लिखा मिलेगा आपको, ये क्वेश्चन भी आता है कि एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस के लिए एक मेथड लिखें, तो यू विल राइट दिस बेरियम और सोडियम एजाइड का थर्मल डिकम्पोजिशन विल गिव यू एक्स्ट्रा प्योर नाइट्रोजन गैस. Next, if we move, it is the properties of dinitrogen. So properties of dinitrogen की बात करें काफी, क्योंकि ग्रुप 15 हम पढ़ रहे हैं पिछली 4 क्लासेस से, तो डाइनाइट्रोजन के बारे में काफी बात हुई भी है, तो काफी प्रॉपर्टीज आपको ऐसे लगेगा कि हमने सुनी हुई है. कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस यानी कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस गैस है, नॉन टॉक्सिक गैस है. नॉन टॉक्सिक है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, हमें पता है इतना हाई परसेंटेज में होता है, तो नॉन टॉक्सिक गैस है. वेरी लो सॉलेबिलिटी इन वाटर, वाटर में सॉलेबिलिटी बहुत कम है. जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे दिख रही है आपको, ड्यू टू वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, हमने ये पढ़ा था कि अगर हम डाइनाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और जो ट्रिपल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत हाई है. तो इसी रीजन की वजह से रूम टेम्परेचर पे तो वो मिलेगा नहीं, रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी नहीं मिलेगी जिससे ये बॉन्ड टूट जाए. तो रिजल्ट क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन होता है यानी डाइनाइट्रोजन, वो ऑलमोस्ट अनरिएक्टिव है. और अगर आपको याद है तो हमने डिस्कस किया था कि इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करने में भी यूज होती है, बल्ब्स में हम जिससे फिलामेंट बर्न ना करे उसका,
या चिप्स के पैकेट में हम डालते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। सो इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी रीजन की वजह से, क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इट हैज वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन है जिसे हम डाइनाइट्रोजन बोलते हैं, दैट इज क्वाइट अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। सो ये एक रीजन है, ये भी क्वेश्चन है, व्हाई मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। अगर हम हाई टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रिएक्टिविटी बढ़ेगी। बहुत हाई टेम्परेचर पे डाइनाइट्रोजन जो है वो कंबाइन कर सकती है कुछ मेटल्स के साथ। मेटल्स क्या होते हैं? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर एलिमेंट है तो ये नाइट्राइड बना सकता है। अगर याद है तो हमने एक पढ़ा था कि ग्रुप 15 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स की जब बात की थी तो हमने पढ़ा था एक ऑक्सीडेशन स्टेट -3 की भी आती है, 10+3 n+5 की बात करते हैं। -3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उस वो तभी दिखेगी जो बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये बना सकता है -3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड, डिपेंडिंग कि जिस दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कैसा है। अगर वो एलिमेंट, जैसे यहाँ हमें दिख रहा है लिथियम एल्कली मेटल, यहाँ हमें दिख रहा है मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल, सो ये एलिमेंट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के कैटेगरी में आते हैं। अगर ये अपने साथ इनको कंबाइन करेगा उस केस में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको -3 दिख सकती है। तो नाइट्राइड आयन जो होता है दैट इज N3 नेगेटिव। अभी हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था एजाइड आयन, व्हाट इज द डिफरेंस? एजाइड आयन इज कैरिंग 1 नेगेटिव चार्ज एंड 3 नाइट्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड, सो दैट इज N3 नेगेटिव, दैट इज एजाइड। और अगर हम नाइट्राइड आयन की बात कर रहे हैं तो द सिंगल एटम दैट इज शोइंग एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -3, तो उसका चार्ज 3 नेगेटिव है। तो नाइट्राइड्स बना सकता है जब मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा एट हाई टेम्परेचर, जैसे यहाँ पे लिथियम नाइट्राइड का एग्जाम्पल दिख रहा है आपको और मैग्नीशियम नाइट्राइड का एग्जाम्पल दिख रहा है। नेक्स्ट चलते हैं विद मोर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइनाइट्रोजन। ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट हम अमोनिया डिस्कस करने वाले हैं तो वहां पे भी हम डिस्कस करेंगे। डाइहाइड्रोजन के साथ जब कंबाइन करता है at about 773 Kelvin in the presence of catalyst. हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे what catalyst we use when we prepare ammonia. So नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन करते हैं, अमोनिया गैस हमें मिलती है। सो ये इसका कॉम्बिनेशन है हाइड्रोजन के साथ। अगर ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, स्पेसिफाइड कंडीशन है ऑप्टिमम यील्ड के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की, कैटलिस्ट प्रेजेंट अगर हो तो हमें अमोनिया मिलता है। ये रिएक्शन हम आगे और इलेबोरेटेड वे में डिस्कस करेंगे। अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, अप्रोक्सीमेटली दिस रिक्वायर्स वेरी हाई टेम्परेचर, क्योंकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रिलेटिवली हायर टेम्परेचर, अप्रोक्सीमेटली 2000 केल्विन। तो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं लगभग इतने टेम्परेचर पे तो हमें मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। सो दिस वाज रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन, डाइहाइड्रोजन। Quite easy reactions. So next we are doing starting with ammonia. If we say ammonia again, preparation of ammonia. इन स्मॉल क्वांटिटीज अगर हम देखें तो अमोनिया एयर और सॉइल में भी प्रेजेंट होती है, जहां ये बनती है नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर के वेस्ट से। अगर देखें तो एक्सक्रीटा जो होता है एनिमल का, एनिमल वेस्ट जो होता है उसमें भी यूरिया की फॉर्म में जैसे प्रेजेंट है, तो दैट इज ऑल्सो नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर अगर हम बात करें प्लांट मैटर और एनिमल मैटर उसके थ्रू। सो स्मॉल क्वांटिटी में एयर और सॉइल में ये नाइट्रोजिनस ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है, जैसे यूरिया जैसा, उसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, उसके डीके के थ्रू बन सकता है। जैसे यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, दिस इज यूरिया। तो यूरिया से पहले अमोनियम कार्बोनेट और वो डिकम्पोज होकर हमें अमोनिया गैस दे रहा है। तो ये एक रिएक्शन हम बता रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि नेचर में कुछ क्वांटिटी में एयर में और सॉइल में अमोनिया जो प्रेजेंट है उसका एक एग्जाम्पल है कि इस रिएक्शन के थ्रू भी बन सकती है। अगर हमें स्मॉल स्केल प्रिपरेशन करना है, तो स्मॉल स्केल मतलब मैन्युफैक्चर बोलते हैं लार्ज स्केल प्रिपरेशन को इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल स्केल की बात नहीं कर रहे हैं, स्मॉल स्केल थोड़े अमाउंट में बनाना है अगर अमोनिया, तो वो अमोनियम सॉल्ट्स को डिकम्पोज करके भी बनाया जा सकता है।
अमोनियम सॉल्ट्स का डिकम्पोजिशन। जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है, अमोनियम क्लोराइड को लाइम के साथ, स्लेट लाइम के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, ये लैब मेथड है ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो अगर ये रिएक्ट करता है विद दिस, या तो लाइम के साथ या देखे सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली के साथ, ये अमोनियम क्लोराइड जब रिएक्ट कर रहा है तो हमें अमोनिया मिल रही है। ये लैब मेथड है, अभी मैंने आपको बताया, ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ammonia. Similarly, when ammonium sulfate is reacting with sodium hydroxide, then also we are getting ammonia. So these two reactions are used for small scale preparation of ammonia. अगर हम बात करते हैं कॉमर्शियल प्रिपरेशन की, कॉमर्शियल प्रिपरेशन मतलब लार्ज स्केल प्रिपरेशन हमें बनाना है, यानी मैन्युफैक्चर बोलते हैं उसको, मैन्युफैक्चरिंग स्केल। उस पे अगर बात करें तो अमोनिया बनाया जाता है, एक प्रोसेस आता है, हेबर्स प्रोसेस बोला जाता है। तो हेबर्स प्रोसेस के थ्रू कॉमर्शियल प्रिपरेशन की जाती है अमोनिया की, और उसमें जो रिएक्शन इन्वॉल्व है वो आपको दिख रही है। N2 plus 3H2 is giving twice of NH3, and enthalpy of formation लिखा है यहाँ पे, standard enthalpy of formation, that is minus 46.1 किलोजूल पर मोल। अब इस रिएक्शन में अगर आप देखो तो नोटवर्दी पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या चीजें हमें नोट करने वाली हैं। फर्स्ट, ये रिएक्शन का जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमें दिख रहा है वो नेगेटिव है, यानी दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये चीजें हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगी, जो अभी पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ये डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि अगर हमें अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है, वी वांट टू गेट मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया, तो हमें रिएक्शंस के लिए क्या कंडीशंस रखनी चाहिए। उसके लिए ये जो कंडीशंस हैं ये हेल्प करेंगी, ये जो हम अभी कर रहे हैं डिस्कस। इसके बाद ये रिएक्शन है एक रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्शन रिवर्सिबल है, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी यहाँ पे दिख रहा है आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में। और यहाँ अगर हम देखें तो रिएक्टेंट देखो आप, नाइट्रोजन है 1 वॉल्यूम, हाइड्रोजन है 3 वॉल्यूम, और प्रोडक्ट हमारे पास अमोनिया जो बन रहा है दैट इज 2 वॉल्यूम। यानी जो टोटल रिएक्टेंट्स हैं दे आर 4 वॉल्यूम, 1 वॉल्यूम प्लस 3 वॉल्यूम। तो रिएक्टेंट्स का जो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है वो 4 वॉल्यूम है, और प्रोडक्ट हमारे पास बन रहा है 2 वॉल्यूम। दैट मीन्स जो रिएक्शन है दैट प्रोसीड्स विद डिक्रीज इन वॉल्यूम, रिएक्शन डिक्रीज इन वॉल्यूम के साथ प्रोसीड कर रही है, ये हमें यहाँ पे पता चल रहा है। अब इससे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कैसे हम रिएक्शन के लिए टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन रखें कि हमें मोर अमाउंट ऑफ अमोनिया मिले। लेट्स डिस्कस दैट। And this slide talks about favorable conditions for the formation of ammonia, और ये है according to ली शेटलियर्स प्रिंसिपल जो आपने पढ़ा था 11th में भी चैप्टर इक्विलिब्रियम में, जो ये बोलता है कि ली शेटलियर प्रिंसिपल क्या था कि अगर आप एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन को, एक इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, आप उसका टेम्परेचर प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को चेंज करते हो, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, वो दोबारा स्टैब्लिश होगा, और वो शिफ्ट होगा उस डायरेक्शन में जहां जो आपने जो भी चेंज लाया है वो उसको यूटिलाइज कर पाए, न्यूट्रलाइज कर पाए, कैंसिल कर पाए। यानी अब हम यहाँ देखें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल आप 11th में पढ़ चुके हो। इस रिएक्शन में हमने लिखा कि अगर हम ज्यादा अमोनिया बनाना चाहते हैं तो टेम्परेचर बहुत हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर लो टेम्परेचर इस रिएक्शन को फेवर करेगा। अभी हमने रिएक्शन पीछे पढ़ी, उसमें लिखा था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज नेगेटिव, यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। अब रिएक्शन में ऑलरेडी हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं वो लो टेम्परेचर से फेवर होती हैं, they are favored by low temperature. Exothermic according to ली चैटलियर principle, if reaction is exothermic that is favored by low temperature. अमोनिया फॉर्मेशन का जो रिएक्शन है, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, वो उसको बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, और इस रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर, दैट इज क्लोज टू 700 केल्विन, स्लाइटली हायर देन दैट। देन अगर हम बात करें प्रेशर कंडीशंस क्या होनी चाहिए, तो इस रिएक्शन के लिए प्रेशर होना चाहिए हाई। अभी आपको बताया मैंने कि 4 वॉल्यूम रिएक्टेंट्स हैं यहाँ पे, 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन, और प्रोडक्ट जो हमारे पास बन रहा है वो बन रहा है 2 वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। यानी यहाँ पे हमें ये दिखाई दे रहा है कि रिएक्शन में डिक्रीज इन वॉल्यूम हुआ, तो रिएक्शन
डिक्रीज इन वॉल्यूम की तरफ तब जाएगी जब आप प्रेशर हाई करोगे। यानी अगर आप ये चाहते हो कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाए जहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो उस केस में आपको प्रेशर को हाई करना पड़ेगा, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहां पे वॉल्यूम कम हो रहा है। और अमोनिया फॉर्मेशन में वॉल्यूम कम होता है, इसलिए हम प्रेशर अगर हाई रखें तो वो हमें हेल्प करेगा to get more amount of ammonia. So formation of ammonia is favored by high pressure, और इस रिएक्शन के लिए जो ऑप्टिमम प्रेशर है that is approximately around 200 atm. देन कैटलिस्ट की बात करें, कैटलिस्ट का प्रेजेंस भी इस रिएक्शन के रेट को, अमोनिया फॉर्मेशन के रेट को बढ़ा सकता है। जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज आयरन ऑक्साइड मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। पहले यूज होता था आयरन विद मोलिब्डेनम, iron as catalyst and molybdenum as promoter, पहले ये यूज होता था, but this catalytic mixture of oxides have been found to be more efficient, more effective, so अब यूज होता है iron oxide with a small amount of this potassium oxide and aluminium oxide. So अगर पूछा जाए कि what are the favorable conditions for the formation of ammonia, तो conditions are low temperature, high pressure and presence of catalyst. So these are the conditions which favor formation of ammonia. Let's move to the next slide and that is schematic diagram. ये जो Haber's process अभी हमने डिस्कस किया, इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है, schematic डायग्राम क्या है। सबसे पहले वही जो रिएक्टेंट है इस रिएक्शन के लिए, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस, उनको कंप्रेसर से लिया जाए, कंप्रेसर में पास किया जाता है। कंप्रेसर क्या करेगा, अभी लिखा कि इनके अमोनिया फॉर्मेशन के लिए जो रिक्वायर्ड या ऑप्टिमम सुटेबल प्रेशर है दैट इज 200 atm। तो कंप्रेसर क्या करता है, इस गैसेस मिक्सचर को उस प्रेशर तक कंप्रेस कर देता है। कंप्रेसर से इस गैसेस मिक्सचर को आगे ले जाया जाता है जहां, जिसे हम बोलते हैं रिएक्टर। रिएक्टर में एक तो ये कैटालिटिक मिक्सचर है और दूसरी चीज है वहां पे टेम्परेचर जो है वो रिएक्शन के लिए जो हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर डिस्कस किया था लगभग 700 केल्विन का, वो टेम्परेचर पे वो कंपार्टमेंट होगा, वहां पे कैटालिटिक मिक्सचर होगा। तो जब गैसियस मिक्सचर आगे जाएगा वो रिएक्ट करेगा और अमोनिया बनेगी। लेकिन जो यहां से बाहर जा रहा है रिएक्टर से, उसमें खाली अमोनिया नहीं है, नॉट 100% ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन हैज रिएक्टेड। और दूसरी चीज हमने ये भी देखी है कि रिएक्शन रिवर्सिबल भी है। तो जो यहां से बाहर जा रहा है उसमें तीनों गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है और अमोनिया भी है। फिर इसको आगे निकाला जाता है, पास किया जाता है उस गैसेस मिक्सचर को जिसमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया तीनों हैं, उसको हम पास करते हैं थ्रू अ कूलिंग चैम्बर। कूलिंग चैम्बर में अमोनिया जल्दी लिक्विफाई हो जाएगा, तो अमोनिया लिक्विफाई हो जाता है। ये लिक्विफाई और जो बाहर इससे एग्जिट करेगा गैसेस मिक्सचर, उसमें होंगे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। सो कूलिंग चैम्बर से पास करके जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड अमोनिया का गैसेस मिक्सचर वी हैड, उसमें से वी लिक्विफाई अमोनिया, अमोनिया को लिक्विड में कन्वर्ट करके सेपरेट कर लिया जाता है। एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन उससे एग्जिट करते हैं, उसे वापस वही सर्कुलेट, रीसर्कुलेट हम करते हैं, उसको वापस कंप्रेसर के थ्रू निकाला जाता है, देन वही रिएक्टर में जाता है, रिएक्ट करता है, and we get again the same process continues. So that is how ammonia is manufactured by Haber's process. So this was a schematic diagram of the process. Next is properties of ammonia. बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है यहाँ। तो जो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, कलरलेस गैस होती है लेकिन स्मेल एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है इसकी। अगर आप कई बार देखोगे या पढ़ोगे कि आपके पास आएगा दिस सब्सटेंस हैज अमोनियाकल स्मेल, कि इसकी स्मेल जो है वो अमोनियाकल है, यानी अमोनिया जैसी है। अब अमोनिया जैसी स्मेल अगर कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है अमोनिया की खुद की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है। सो दिस इज अ कलरलेस गैस विद कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। हाईली सॉलेबल है, और सॉलेबिलिटी ऑफ अमोनिया हमने डिस्कस किया था जब हमने हाइड्राइड्स को डिस्कस किया था। इट इज हाईली सॉलेबल बिकॉज वाटर के साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो दिस वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास ऑल्सो। सो उसकी वजह से अमोनिया वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाती है। अगर हम बात करें वाटर में अमोनिया के सॉल्यूशन की, तो जो उसका नेचर होता है वो बेसिक नेचर का होता है। रीजन क्या है कि अमोनिया
वाटर के साथ जब कंबाइन कर रहा है तो वाटर के OH नेगेटिव आयन के साथ ये कोऑर्डिनेट कर लेगी। अमोनिया के पास लोन पेयर है, वाटर का जो H पॉजिटिव आयन है उसके साथ ये कोऑर्डिनेट कर लेगा, तो सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होंगे? फ्री OH नेगेटिव आयंस। एंड इसने वाटर के H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके बना दिया अमोनियम आयन, कोऑर्डिनेट कर गया उसके साथ, अमोनियम आयन बन गया एंड द सॉल्यूशन हैज OH नेगेटिव आयंस, जिसका रिजल्ट ये होगा कि जो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया है दैट इज वीकली बेसिक ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन। सो इसका एक्वस सॉल्यूशन का नेचर बेसिक होगा। ये ल्यूइस बेस कैरेक्टर हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में सारे हाइड्राइड्स के लिए कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो ल्यूइस बेस कैरेक्टर या बेसिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज करता है। क्यों है ल्यूइस बेस? हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर कि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है और ये जो लोन पेयर है ये इसको ल्यूइस बेस बनाता है। सो ल्यूइस बेस बेसेस आर लोन पेयर डोनर्स। अब एक प्रॉपर्टी इसके पास है कि ये जो लोन पेयर है ये इसे डोनेट कर सकता है, यानी कोऑर्डिनेट करने में यूज कर सकता है, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग में यूज कर सकता है विद मेटल आयंस। ये आप कॉम्प्लेक्स वाली जो बात आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रही है, ये कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आप पढ़ोगे, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है आफ्टर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद आएगा आपका डीएफ एंड उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। तो ये अपना जो लोन पेयर है इसे यूज करता है मेटल आयन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने में। उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अपना लोन पेयर उनके साथ कोऑर्डिनेशन में यूज करेगा, जिसका रिजल्ट होगा कि कॉम्प्लेक्स आयंस बनेंगे। जैसे कॉपर के साथ एक एग्जांपल यहाँ दिख रहा है आपको, तो कॉपर के साथ जब बनाता है तो ये डीप ब्लू कलर का ये कॉम्प्लेक्स आयन बनता है। सिमिलरली AgCl का जो व्हाइट पीपीटी है, अगर AgCl हमने पढ़ा है पीपीटी की फॉर्म में होता है, वो अमोनिया से रिएक्ट करता है तो हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। यानी इस रिएक्शन से हमें क्या पता चल रहा है कि AgCl है, अगर हमें एक्वस अमोनिया के साथ उसे ट्रीट कराएं तो वो पीपीटी डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि जो सॉल्यूशन बन रहा है, जो रिजल्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वो कॉम्प्लेक्स एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। तो सिल्वर क्लोराइड हम ये कह सकते हैं कि जो सिल्वर क्लोराइड है दैट डिसॉल्व्स इन aqueous solution of ammonia, that is ammonium hydroxide, तो सिल्वर क्लोराइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये रिएक्शन वही दिखा रही है कि जो व्हाइट पीपीटी है वो एक्वस में चला गया और हमें कलरलेस सॉल्यूशन मिल गया। इसके बाद अगर हम डिस्कस करें अमोनिया के यूजेस, तो मेन यूज अमोनिया का बहुत सारे यूजेस में से एक यूज है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर बनाने में। कुछ फर्टिलाइजर्स के नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया। ये सारे वो फर्टिलाइजर्स हैं जिनके लिए अमोनिया की जरूरत होती है, अमोनिया का यूज होता है। नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक अभी पढ़ेंगे आज के लिए। नाइट्रिक एसिड बनाने में अमोनिया यूज होता है और लिक्विड अमोनिया एक रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज होता है। सो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ अमोनिया। Next, let's see what we have understood by previous two topics. N2 nitrogen हमने पढ़ा, dinitrogen पढ़ा और हमने पढ़ा ammonia. So let's see what we have understood. There is a question for you. On adding NaOH to ammonium sulfate, a colorless gas with pungent odor is evolved, which forms a blue colored complex with copper ion. Identify the gas. कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, कलरलेस गैस आती है जिसकी पंजेंट ऑर्डर है, जो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स बनाएगी विद कॉपर आयन। उस गैस का नाम क्या है? यू कैन राइट योर आंसर, गैस का नाम लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं इन द चैट बॉक्स। यू कैन राइट दिस। You have 10 seconds. Write fast. What will be the formula of the gas formed, whether you think it's nitrogen or you think it is ammonia? Which gas will be formed? Yes, I have started getting answers. Ammonia. Yes. Yes, majority, all of you are answering correctly. That means you have understood the concept. Yes, very good, very good. So ammonia. Ammonia is formed by this reaction, and just in previous slide we discussed this reaction also. One more question. What happens when ammonium chloride is treated with calcium hydroxide? When ammonium chloride is treated with hydroxide, calcium hydroxide, what will you get? You can write the name of the product. If you know, write the name of the product fast. When ammonium chloride is treated with
What will be the product? Yes, right. Very good. Yes, correct answer is ammonia. And then one more question. Mention the condition to maximize the yield of ammonia. Mention the conditions to maximize the yield of ammonia. अगर हमें अमोनिया का यील्ड बढ़ाना है, हेबर्स प्रोसेस की बात हमने की थी, तो उसमें क्या कंडीशंस रखनी चाहिए? सो उसके लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो आई एम डायरेक्टली डिस्कसिंग द आंसर, एंड दैट आंसर वाज लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट। कि लो टेम्परेचर होना चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए और कैटलिस्ट प्रेजेंट होना चाहिए, ये हमने डिस्कस किया था। So next, we will start with nitric acid. Nitric acid, if we say this is most important oxo acid of nitrogen, सबसे important oxo acid है nitrogen का, और oxo acid के क्या बताया था वो मैं structure में अभी आपको फिर बताऊंगी। last class में आपको बताया गया था what are oxo acids, so that we discussed. So in next जब स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे अभी फिर डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन की बात करते हैं, लाइक प्रीवियस टू केसेस। पहले हम प्रिपरेशन देखते हैं कैसे होता है प्रिपरेशन। लैब प्रिपरेशन अगर बात करें तो ये बनाया जाता है KNO3 और NaNO3 को हीट करके, सोडियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करके विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सो इसके साथ रिएक्शन का एग्जाम्पल यहाँ पे हमें दिख रहा है, NaNO3 एंड H2SO4 आर रिएक्टिंग टू गिव नाइट्रिक एसिड। इसके लिए नाइट्रिक एसिड के लिए अगर कॉमर्शियल प्रिपरेशन की बात करें तो इट इज मेड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। यहाँ पे हम बात करते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ओस्टवाल्ड प्रोसेस में स्टेप्स क्या हैं? ओस्टवाल्ड प्रोसेस में 3 स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले अमोनिया का जो कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो ऑक्सीडाइज होती है टू गिव नाइट्रिक ऑक्साइड। then its nitric oxide combines with more oxygen to get nitrogen dioxide, and then nitrogen dioxide dissolves in water to give nitric acid. So these are the 3 steps. First step is there in this slide itself. So पहला step है catalytic oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अमोनिया का कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, जिसके रिजल्ट ये होगा कि वो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस इज द रिएक्शन फॉर दैट। देन स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो स्टेप 2 में नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो कंबाइन करेगा विद मोर ऑक्सीजन टू गिव नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। दिस नाइट्रिक ऑक्साइड is combining with more oxygen to give nitrogen dioxide. This is step number 2. Then नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये डिसॉल्व करेगा वाटर में। व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और व्हेन इट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये नाइट्रिक एसिड देगा। तो दीज आर द 3 स्टेप्स टू प्रिपेयर नाइट्रिक एसिड थ्रू ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब यहाँ पे हम एक चीज और देखने की, सेकंड स्टेप में हमारे पास रिएक्टेंट है नाइट्रिक ऑक्साइड, और थर्ड स्टेप में एक प्रोडक्ट की फॉर्म में भी हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिल रहा है। तो इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम फिर से रिसाइकल कर सकते हैं, ये फिर से रिसाइकल होगा और सेकंड स्टेप में यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो यहाँ से हमें एक्वा सॉल्यूशन मिल रहा है नाइट्रिक एसिड का, दैट इज नॉट दैट कॉन्सेंट्रेटेड, वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है। उसको हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन की प्रोसेस के थ्रू उसमें से वाटर को सेपरेट किया जाता है, या जितना हम उसको कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं वो किया जाता है। और लगभग 68% HNO3 बाय मास हमें यहाँ से मिलता है जब हम इसको डिस्टिलेशन के थ्रू कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और ये जो 6 लैब में हमारे पास HNO3 होता है, दैट इज ऑल्सो दिस ओनली 68% HNO3 के आसपास ही वो होता है। इससे ज्यादा अगर हमें इसे कॉन्सेंट्रेट करना है लगभग 98% तक, तो वो उसके लिए हम इसे डिहाइड्रेट करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफिनिटी रखता है वाटर के लिए, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। या जब आप ग्रुप 16 पढ़ोगे तब आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में इसका रीजन और इसका पढ़ने के लिए मिलेगा। तो ये इसका कॉन्सेंट्रेशन का मेथड। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो नाइट्रिक एसिड की प्रॉपर्टीज में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। स्ट्रक्चर में प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज नाइट्रोजन जो है दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड इन दिस केस। सो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करेगा। अब
यहाँ अभी मैंने बताया ऑक्सो एसिड, तो यहाँ हम देख रहे हैं ऑक्सो एसिड्स, मैंने आपको बताए थे एलिमेंट के वो होते हैं जिनके पास कम से कम एक OH बॉन्ड हो उस एटम के साथ बॉन्डेड। तो यहाँ हम देख रहे हैं N के साथ ये OH बॉन्डेड है, इसलिए इसको ऑक्सो एसिड बोल रहे हैं। सेंट्रल एटम नाइट्रोजन हो या फास्फोरस के ऑक्सो एसिड की आप बात कर रहे हो, या जिसके एलिमेंट के ऑक्सो एसिड की बात कर रहे हो, उसके साथ बॉन्डेड एक OH ग्रुप हमें दिखेगा, तो ये एक ऑक्सो एसिड है। यहाँ पे हम एक चीज और देख रहे हैं, एक ही हाइड्रोजन है तो मोनोबेसिक एसिड है। बेसिसिटी कितनी है इसकी 1, क्योंकि 1 H पॉजिटिव दे सकता है, तो ये मोनोबेसिक एसिड होगा, बेसिसिटी इज 1। एक्वस सॉल्यूशन में ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में ये हाइड्रोनियम आयन देगा और नाइट्रेट, फिर वही वाटर को H पॉजिटिव देगा, वाटर हाइड्रोनियम आयन और NO3 नेगेटिव आयन, क्योंकि हमें H पॉजिटिव दे रहा है सॉल्यूशन में, हाइड्रोनियम आयन मिल रहा है हमें सॉल्यूशन में, देयरफॉर इट इज अ एसिड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इसकी हाइड्रोनियम आयन बनाने की या अपना H पॉजिटिव देने की, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। सो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखें तो वो है इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। दिस स्लाइड एक्चुअली नीड्स लॉट्स ऑफ फोकस और कंसंट्रेशन, इसको ढंग से देखें, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो दिख रही है आपको स्लाइड पे। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और लगभग सारी ही मेटल्स को अटैक कर सकता है, उनके साथ रिएक्ट कर सकता है, नोबल मेटल्स को छोड़ के। गोल्ड और प्लेटिनम को अगर छोड़ दें, जैसे एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे, तो उसके अलावा लगभग सारी मेटल्स के साथ रिएक्ट कर सकता है। अब इन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का रिजल्ट क्या होगा, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि एसिड कैसा है। एसिड कैसा है का मतलब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड, टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन क्या है, एंड नेचर ऑफ मटेरियल। मटेरियल मींस मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है, वेदर दैट इज हाईली रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव। उन दोनों, इन सारे ही केसेस में अगर आप चेंजेस लाओगे, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करा रहे हो या कॉन्सेंट्रेटेड के साथ करा रहे हो, टेम्परेचर हाई है या टेम्परेचर लो है, मटेरियल जो ऑक्सीडाइज हो रहा है वो लेस रिएक्टिव है मोर रिएक्टिव है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन डिसाइड होगा। जैसे कोई भी मेटल हो, अगर वो HNO3 से रिएक्ट कर रहा है, चाहे डाइल्यूट से या कॉन्सेंट्रेटेड से, तो ये चीजें आपको मिलेंगी मिलेंगी, दो तो बनना ही है, इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, मेटल नाइट्रेट और वाटर बनेगा। लेकिन साथ में जो चेंज होता है प्रोडक्ट, वो है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन जो बन रहा है। ये आपको याद करना है कि ये कौन सा बनेगा, ये अलग अलग होगा। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 है तो कुछ और, डाइल्यूट HNO3 में भी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल के लिए अलग अलग। लेकिन दो चीजें कॉमन रहेंगी, HNO3 अगर रिएक्ट कर रहा है, चाहे डाइल्यूट रिएक्ट करे या कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट करे, मेटल नाइट्रेट और वाटर बनेगा ही। अब कोई भी मेटल हो, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रोडक्ट में हमेशा जो नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो NO2 आएगा, और मैंने बोला मेटल नाइट्रेट बनेगा और वाटर तो बनेगा ही। तो ये दोनों तो फिक्स है, हर रिएक्शन में आप देख पा रहे हो ये फिक्स है, कोई चेंज नहीं आ रहा। जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में। तो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ बनेगा NO2। अगर ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, लाइक हम बात कर रहे हैं जिंक की, आयरन की या टिन की, और वो डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट करता है, तो जो ऑक्साइड बनता है वो है N2O। और अगर लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक कॉपर तो या सिल्वर, तो उस केस में जो ऑक्साइड बनेगा दैट इज NO। तो व्हाट इज चेंजिंग आर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये आपको याद करने हैं, नाइट्रेट और वाटर बनेगा ही, मेटल नाइट्रेट एंड वाटर। एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ दोनों का एग्जांपल दिया, तो एज वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड, कि चाहे कोई भी मेटल हो, हाई रिएक्टिविटी लाइक जिंक और लो रिएक्टिविटी लाइक कॉपर, अगर वो रिएक्ट करेगा NO2 बनेगा, नाइट्रेट तो बनेगा ही मेटल का, और वाटर बनेगा। तो ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस स्लाइड में, तो देयर इज नो कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट। एक आपने पढ़ा था 11th में कि जब कुछ मेटल्स होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, यहाँ पे एग्जांपल लिखे हैं और भी, एल्यूमिनियम, आयरन, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल, ये जब कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करते हैं तो इनकी सरफेस पे एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, और वो ऑक्साइड की लेयर काफी पैसिव लेयर होती है। पैसिव लेयर कि इसके बाद फिर उनके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी अटैक नहीं कर पाता। एक बार वो अगर ऑक्साइड लेयर उनकी सरफेस पे बन जाती है तो मेटल को लगभग पैसिव कर देती है, जिसके बाद उसके ऊपर फर्दर अटैक ऑफ HNO3 नहीं होगा। एल्यूमिनियम का केस, क्योंकि ग्रुप 13 हमने पढ़ा था लास्ट 11th क्लास में,
वहां पे हमने पढ़ा था कि अगर एक बार ये ऑक्साइड लेयर बन गई Al2O3, वो लेयर बन गई, तो उसके बाद आप एल्यूमिनियम कंटेनर्स में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 को ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। दिस वाज अ क्वेश्चन इन क्लास 11th। सो उसका रीजन यही है कि जो लेयर होती है ये काफी पैसिव होती है और उसके बाद मेटल रिएक्ट नहीं करेगा विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। डाइल्यूट HNO3 का केस सिर्फ एग्जांपल्स, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि अगर हम मोर रिएक्टिव मेटल है तो प्रोडक्ट में N2O आएगा, नाइट्रेट और वाटर तो आएगा ही। तो उसमें मैंने एग्जांपल लिया है जिंक का, तो हम देख रहे हैं जिंक नाइट्रेट बन रहा है, N2O बन रहा है और वाटर बन रहा है। सिमिलरली लेस रिएक्टिव मेटल है, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, तो हमने देखा था उस केस में नाइट्रिक ऑक्साइड विल बी द प्रोडक्ट और बाकी नाइट्रेट और वाटर तो बन ही रहा है। तो ये एग्जाम्पल्स अगर आप रिलेट करोगे उस स्लाइड के साथ तो आपको समझने में रहेगी आसानी। So this was about oxidizing action of dilute and concentrated HNO3। अगर हम नॉन मेटल्स की भी बात करते हैं तो नॉन मेटल्स के केस में एक चीज तो आप एक्सक्लूड कर दें सीधे सीधे कि डाइल्यूट HNO3 तो रिएक्ट करता ही नहीं नॉन मेटल्स के साथ। तो ये तो हो गया यहाँ पे आउट ऑफ क्वेश्चन बात कि डाइल्यूट HNO3 विल नॉट रिएक्ट विद नॉन मेटल्स। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो है वो रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं आयोडीन को आयोडिक एसिड, इसे बोलते हैं आयोडिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर रहा है, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में ले जा रहा है, फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक एसिड में और सल्फर को सल्फ्यूरिक एसिड में। तो उनको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। यहाँ पे एक चीज और आसान है याद रखने के लिए कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 चाहे वो मेटल से रिएक्ट कर रहा हो या नॉन मेटल से, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन हमारे पास NO2 ही बन रहा है। ये इजी हो जाता है हमारे लिए रिएक्शन, क्योंकि अगर हमने HNO3 को देखा था कॉन्सेंट्रेटेड, जब नॉन मेटल्स के साथ डाइल्यूट ने रिएक्ट करेगा ही नहीं, लेकिन जब कॉन्सेंट्रेटेड रिएक्ट कर रहा था तो मेटल्स के साथ भी NO2 मिल रहा था हमें और नॉन मेटल्स के साथ भी NO2 मिलेगा। तो दिस बिकम्स इजियर टू लर्न। तो दिस वाज अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ nitric acid. So next is a question. Let's see what you have understood. Write the formula. नाम भी लिख सकते हो आप, of the compound of iodine which is obtained when concentrated compound of phosphorus when which is obtained when concentrated HNO3 oxidizes phosphorus. Compound of phosphorus, it is compound of phosphorus which is obtained when concentrated HNO3 oxidizes P4. There are two questions. First of all, you write this H3PO4, right? Iodic acid, right? So you are writing two questions. So there are actually, this is because few are reading it as iodine and few are reading it as phosphorus. So answer is, if phosphorus we consider, that is phosphoric acid. And one more question for iodine is there. So if you are going with iodine, then that is iodic acid. So both the answers actually I'm getting because of the question, maybe because phosphorus is one, we have both phosphorus and iodine is a word by mistake is that. So both the answers I am getting. So when it reacts with iodine, it is iodic acid, and when it reacts with phosphorus, it is phosphoric acid, and the formula is there. And the last for today's is brown ring test for nitrates. This is last for this group 15 also and for today's class also कि nitrates को अगर हमें टेस्ट करना होता है, salt analysis आपने किया था 11th में, तो आप परफॉर्म करते थे रिंग टेस्ट परफॉर्म करते थे। रिंग टेस्ट में क्या करते हैं हम कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन है उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड, जो आपको सॉल्ट दिया जिसमें आपको नाइट्रेट टेस्ट करना है, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट ऐड करते हैं और उस सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 स्लोली बाय द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, विद द साइड यानी ड्रॉप बाय ड्रॉप उसको ऐड करते हैं विद द साइड ऑफ टेस्ट ट्यूब, जहां पे दोनों लिक्विड्स एक दूसरे को मिलेंगे, यानी कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और जो सॉल्यूशन में आपके पास लिक्विड था ऑलरेडी, जो सॉल्यूशन है आपके पास टेस्ट ट्यूब में, जहां पे वो दोनों एक दूसरे को मिलेंगे उस जंक्शन पे आपको एक ब्राउन रिंग दिखाई देगा। और उस ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन का रीजन था एक कॉम्प्लेक्स का बनना, एंड दिस इज दैट कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स वहां पे बनेगा। ये ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है। इसका नाम क्या होता है, ये नाम लिखना आप सीखोगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, बट अगर यहाँ पे बात करें तो इसको
Now commonly nitroso-ferrous sulfate बोलते हैं. This is called nitroso-ferrous sulfate. This is commonly called as nitroso-ferrous sulfate. But इसका जो IUPAC में name है वो कैसे लिखते हैं, that you will learn to write in the chapter coordination compounds. And this was the last reaction for this group and for today's class. That is all. This is there in PDF also. These are the deleted topics for group 15, which you will find in the PDF link also. These are the topics which have been deleted for this session to 2020-21 from this group 15. So you can check which are these deleted topics. And that is all from my side for the day. You can find the link to the quiz, the link to the PDF in the description box of YouTube. Attempt the quiz, submit it, and you will be able to assess yourself what you have learned out of this class. And that is all for the day. Thank you so much. Take care, stay safe, stay healthy.